Hello everyone, let me welcome you all to the next lecture of this process control playlist. This lecture is a bit different one because इसमें कुछ PPT वगैरह involved नहीं है. So in the last lecture what has happened that I have asked you to fill a Google form which was given in the description of that particular lecture and वहाँ पे जो Google form में जो MCQs थे that were based on PID, PIPD and PID controllers, right? So this lecture is supposed to be the discussion about that Google Forms responses, right? So okay, let us start. I'll only discuss the correct answer of each and every question. So let us look at the first question. The reciprocal of proportional band is called. So guys, if you remember during the proportional controller thing, I have explained you that Kp equals to 100 by Pb, which is proportional band, right? So that particular Kp is basically the gain only. So the correct answer for this question is gain. Next, a proportional band setting of 175% is equivalent to a gain setting of. So अगर band जो होता है proportional band setting, proportional band जो होता है, if it is a reciprocal of gain, then in order to find out the gain setting from a proportional band setting, we just need to divide that particular thing, put that particular thing in the denominator and put 100 on the numerator. Okay, so 100 by 175, which is 0.571. So 0.571 is the right answer. Next question, phase lag controller does. So guys, do you remember what was the phase lag controller? Phase lag controller was a I controller. So in I controller, what used to happen? It used to reduce the steady state error, right? The steady state error or the offset error which was introduced by using a P controller, this thing is removed now by using a I controller or phase lag controller. So the correct answer to this question is reduction in steady state error. Fine. Next, addition of 0 at origin means. So guys, do you remember addition of 0 means what? Addition of 0 means improvement in transient response. How? Addition of 0 कहाँ पे होता था? Addition of 0 होता था derivative controller के टाइम पे, right? Derivative controller used to add a 0, उसका जो output controller output था उसको Laplace transform करने के बाद हमको s मिला था numerator पे, right? So s numerator में मतलब 0 add होना. So what derivative controller used to do? Derivative controller used to improve the transient response and it does not respond for the steady state, right? So improvement in transient response is the right answer here. Next, the effect of an integral controller on the steady state error and that of the stability of the system. Okay, the integral error क्या करता है? Steady state error को reduce कर देता है. Steady state error मतलब offset error जो P controller की वजह से use हुआ था, like introduce हुआ था, right? So steady state error is reduced and stability क्या होती थी? Stability भी reduce हो जाती थी. क्यों? क्योंकि सिस्टम में पोल्स ऐड हो जाती थी बिकॉज जो कंट्रोलर आउटपुट का इक्वेशन था उसको हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म करते तो एस नीचे चला जाता, मतलब डिनोमिनेटर पे चला जाता. एस डिनोमिनेटर पे जाना मतलब पोल्स ऐड होना और पोल्स ऐड होने की वजह से स्टेबिलिटी रिड्यूस हो जाती थी. दैट मीन्स द स्टेडी स्टेट एरर एंड स्टेबिलिटी बोथ आर रिड्यूस्ड. सो दिस इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट, which controller among this is used in case of an air conditioning system? Air conditioning system, I hope you remember guys, that was basically an on-off controller. Air conditioning system या ऐसे systems में on-off controller या फिर two position controller जो था वही use होता है. Now, in order to reduce the offset in a proportional controller, it is necessary to, guys अगर आप लोगों को याद है this question, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने चेक बॉक्स दिया था आंसर में, मतलब गूगल फॉर्म में वो चेक बॉक्स रहता है ना, वो चेक बॉक्स था. इट वाज नॉट एन एमसीक्यू. सो बेसिकली चेक बॉक्स डालने की यही इंटेंशन है क्योंकि इसमें दोनों ही आंसर्स, ये दो मल्टीपल आंसर्स का है, ठीक है. सो ये दो आंसर्स ही करेक्ट हैं. इंक्रीजिंग द गेन ऑफ द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर एंड एडिंग एन इंटीग्रल मोड. ऑब्वियसली ऑफसेट कौन रिड्यूस करेगा? P कंट्रोलर की वजह से जो ऑफसेट जनरेट हुआ था वो कौन रिड्यूस करेगा? एन आई कंट्रोलर, राइट. सो बाय एडिंग एन इंटीग्रल मोड वी कैन रिड्यूस द ऑफसेट. लेकिन जो ऑफसेट एरर होता है उसका एक्सप्रेशन होता है ESS इक्वल्स टू A/1 + KP. इफ यू रिमेंबर
जहाँ पे ESS होता है स्टेडी स्टेट एरर एंड KP होता है गेन. सो बाय इंक्रीजिंग द गेन ऑफ द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर मतलब KP we can actually reduce the offset of that particular controller. So ESS is inversely proportional to the gain. Steady state error is inversely proportional to the gain. So if we increase the gain, then we can reduce the offset, and if we add an integral mode, then also we can reduce the offset. So in that case, in this particular case, both the things are acceptable. Now if error is constant in time, the output signal is 0. This statement is true for which controller? एरर अगर कांस्टेंट होता है तो हमको कांस्टेंट का उस पर्टिकुलर ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसके वजह से वो कांस्टेंट जीरो हो जाता है. सो वो पर्टिकुलर ऑपरेशन क्या है? डेरिवेटिव ऑब्वियसली, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, राइट? सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ डी कंट्रोलर. ओके, नेक्स्ट, द कंट्रोलर विच इज मोस्ट सुटेबल वन फॉर लिक्विड लेवल कंट्रोल. लिक्विड लेवल कंट्रोल के लिए कौन सा कंट्रोलर सबसे सुटेबल होता है? P controller, right? The controller which is most suitable for gas pressure control, इसके लिए भी P controller. The controller which one is most suitable for flow control के लिए PI controller. लेकिन the controller which is most suitable for temperature control के लिए PID controller. अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इन आंसर्स को क्या हमको याद रखना पड़ेगा? इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है? ऑब्वियसली ऐसा नहीं है. लॉजिक डेफिनेटली है, ठीक है. लिक्विड लेवल कंट्रोल के लिए सिर्फ P को छोड़ के PI क्यों नहीं, या फिर PD क्यों नहीं, या फिर PID क्यों नहीं, राइट? गैस प्रेशर कंट्रोल के लिए सिर्फ P ही क्यों, PI क्यों नहीं, PD क्यों नहीं, या फिर PID क्यों नहीं? फ्लो कंट्रोल के लिए PI क्यों PID नहीं क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली PID की एडवांटेजेस ज़्यादा है PI से, लेकिन PID क्यों नहीं? टेम्परेचर कंट्रोल के लिए ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई कि PID ही चाहिए, PI से क्यों नहीं होगी, PD से क्यों नहीं होगी, P से क्यों नहीं होगी, राइट? सो दिस थिंग्स आई विल डिस्कस राइट नाउ. गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मतलब जो प्रॉब्लम PI और PID एक साथ यूज़ करने से भी, लाइक PI और PID अलग अलग यूज़ करने से भी जो प्रॉब्लम रह गई थी, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग PID की तरफ गए, राइट? नाउ P और I में जो प्रॉब्लम्स थे, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने P और I को कंबाइन किया और PI कंट्रोलर बनाया. P और D कंट्रोलर्स में जो प्रॉब्लम थे, उन प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करने के लिए हम लोगों ने PD कंट्रोलर बनाया, ठीक है. सो नाउ P कंट्रोलर से या फिर I कंट्रोलर से PI तक मूव करने का जो इंटेंशन था हमारा, दैट वाज लाइक P कंट्रोलर्स और I कंट्रोलर्स की प्रॉब्लम्स को हम एडजस्ट नहीं कर रहे थे, मतलब एडजस्टेबल नहीं था वो प्रॉब्लम, राइट? लेकिन अगर वो प्रॉब्लम एडजस्टेबल है, इफ़ द ऑफसेट इज एक्सेप्टेबल, लिक्विड लेवल कंट्रोल में क्या है कि ऑफसेट इज एक्सेप्टेबल, ऑफसेट रहता भी है, देन वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बिकॉज इट मेंटेन्स द लेवल विद इन सर्टेन रेंज एंड इट्स एन इंटीग्रेटिंग प्रोसेस. सो अगर ऑफसेट रहने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम ऑफसेट क्यों ही रिमूव करें? ऑफसेट हमको रिमूव करने में तो I कंट्रोलर चाहिए होगा ना, या फिर PI चाहिए होगा, या फिर PID चाहिए होगा. तो हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर हम P कंट्रोलर ना लगा के PI की तरफ जाएंगे तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, उसका मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, उसका मतलब ध्यान रखना पड़ेगा ज़्यादा एज कम्पेयर टू P कंट्रोलर, राइट? तो वो हम क्यों करें? इफ़ द ऑफसेट इज एक्सेप्टेबल. सो इफ द ऑफसेट इज एक्सेप्टेबल, सिंस द ऑफसेट इज acceptable in case of a liquid level control, so we go for the P controller only. Same thing goes for the gas pressure control. Gas pressure control में भी offset acceptable है. तो since offset को मतलब offset से हमको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, then why should we go for the PI controller and increase our cost? Why should we go for the PID controller and increase our cost, maintenance and other problems associated with those controllers, right? Flow control में क्या हो रहा है कि we need PI controllers, क्योंकि यहाँ पे ऑफसेट को मतलब ऑफसेट एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है? जो I कंट्रोलर आ रहा है वो आके ऑफसेट को रिमूव कर रहा है, राइट? लेकिन आप लोगों को अभी ये भी लग रहा होगा कि यहाँ पे मतलब फ्लो कंट्रोल के लिए तो फ्लो तो फास्ट होना चाहिए, फास्ट के लिए हमको डी कंट्रोलर लगाना चाहिए, या फिर PI के साथ डी कंबाइन करके PID लगाना चाहिए. नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्लो कंट्रोल में जो फ्लूइड का फ्लो होता है, लिक्विड का फ्लो होता है, वो फास्ट होता है और डायरेक्ट होता है.
उसमें हमको डी कंट्रोलर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो मतलब स्पीड सफिशिएंट होता है। लेकिन ऑफसेट एक्सेप्टेबल नहीं है, इसी वजह से हमने पी से पी आई तक मूव किए हम, ठीक है। जो फ्लो है वो अगर सफिशिएंट नहीं होगा तो फिर पी आई से पी आई डी तक जाएंगे, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस फ्लो सफिशिएंट है, सो पी आई, राइट, पी आई डी लगा के एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करेंगे हम। टेम्परेचर कंट्रोल के लिए पी आई डी, क्योंकि मतलब टेम्परेचर कंट्रोल में हम किसी चीज़ को लेके एडजस्ट नहीं कर सकते, चाहे वो ऑफ सेट बोल लीजिए या फिर स्टेडी स्टेट एरर या ट्रांजिएंट स्टेट एरर या फिर कुछ भी। टेम्परेचर कंट्रोल में हम किसी चीज़ के साथ या फिर स्पीड बोलो या फिर जो भी बोलो, टेम्परेचर कंट्रोल में हम किसी चीज़ के साथ एडजस्ट नहीं करेंगे, किसी चीज़ के साथ सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। हमको बेस्ट से बेस्ट कंट्रोलर चूज़ करना पड़ेगा जिसका रिस्पॉन्स या फिर जिसका मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है सारा मतलब सूटेबल या फेवर में रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम पी आई लगा दिए तो डी नहीं है मतलब फास्ट नहीं होगा, हम पी डी लगा दिए आई नहीं है मतलब स्टेडी स्टेट एरर रह जाएगा, ट्रांजिएंट के लिए रिस्पॉन्स करेगा, तो वो भी हमको मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, वो चीज़ भी हमको मतलब वी कैन नॉट अफोर्ड दैट टू हैपन, राइट। सो पी आई डी कंट्रोलर फॉर अ टेम्परेचर कंट्रोल। सो दिस the use of controllers is application oriented, okay. For different application we think different strategies for usage of controllers and it varies from user to user. अगर आप PI कंट्रोलर का पैसा अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, देन आप गैस प्रेशर कंट्रोल में भी PI लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑफसेट तो एक्सेप्टेबल है ना, देन आई शुड गो फॉर PI लगा के एक्स्ट्रा खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, right? So yeah, now your process reaction rate is sluggish, which controller will you choose? Process reaction rate sluggish है, अब sluggish process control like process reaction rate को improve करने के लिए एक ऐसा कंट्रोलर चूज करना पड़ेगा जो मतलब प्रोसेस को फास्ट बनाती है। प्रोसेस को फास्ट कौन सा कंट्रोलर बनाता है? डी कंट्रोलर। इसमें भी चेकबॉक्स था, ये MCQ नहीं था क्योंकि इसमें मल्टीपल आंसर्स करेक्ट है। डी कंट्रोलर भी करेक्ट है, पीडी कंट्रोलर भी करेक्ट है, पीआईडी कंट्रोलर भी करेक्ट है। प्रोसेस रिएक्शन रेट को स्लगिश से फास्टर बनाने के लिए पहले हम जाते हैं डी कंट्रोलर की तरफ। अगर डी कंट्रोलर की तरफ जाके हम ये देखते हैं कि मतलब कुछ डी कंट्रोलर अकेले यूज़ करने से जो प्रॉब्लम्स है वो अगर हमारे लिए एक्सेप्टेबल है देन वी विल सेटल फॉर डी कंट्रोलर ओनली। लेकिन डी कंट्रोलर अकेले सेटल करने की वजह से अगर जो प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस हो रहे थे वो एक्सेप्टेबल नहीं है देन वी शुड गो फॉर पीडी कंट्रोलर। अभी पीडी कंट्रोलर की वजह से क्या हुआ ना कि जो ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स है वो तो इम्प्रूव हो रहा है लेकिन स्टेडी स्टेट नहीं हो रहा है। अगर वो चीज़ हमको एक्सेप्टेबल है देन पीडी कंट्रोलर ओनली, लेकिन अगर वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है देन वी विल गो फॉर द पीआईडी कंट्रोलर, राइट। सो या इट डिपेंड्स अगेन, जैसे मैंने बोला है कि इट इज़ एप्लीकेशन ओरिएंटेड एंड इट वेरीज फ्रॉम यूज़र टू यूज़र। लेकिन क्वेश्चन क्या था? योर प्रोसेस रिएक्शन रेट इज स्लगिश। स्लगिश प्रोसेस रिएक्शन रेट को इम्प्रूव करने के लिए अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन रहता है देन डी, पीडी एंड पीआईडी ऑल थ्री ऑफ देम आर करेक्ट। You need to improve the steady state response. Which controller will you use? यहाँ पे एग्जैक्ट सेम है। ट्रांजिएंट के लिए मतलब प्रोसेस रिएक्शन रेट के लिए जैसे 3 सुइटेबल कंट्रोलर्स हैं हमारे पास, यहाँ भी in order to improve the steady state response we can use I controller. I controller अकेले यूज़ करने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो अगर एक्सेप्टेबल है देन हम आई कंट्रोलर में ही सेटल हो जाएंगे, लेकिन वो पर्टिकुलर थिंग अगर एक्सेप्टेबल नहीं है देन वी विल गो फॉर द पीआई कंट्रोलर। अभी पीआई कंट्रोलर अकेले यूज़ करने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जैसे कि मान लो पीआई कंट्रोलर क्या करेगा, स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स को इंप्रूव करेगा लेकिन ट्रांजिएंट स्टेट को नहीं करेगा, राइट। उसके लिए हमको एक डी एलिमेंट चाहिए तो पीआई के साथ हम डी लगा देंगे और पीआईडी बना देंगे। अगेन ये चीज़ अगर हमको एक्सेप्टेबल है देन वी विल स्टे अप टू पीआई, अगर नहीं है देन वी विल गो फॉर द पीआईडी। लेकिन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन रहता है देन आई, पीआई एंड पीआईडी ऑल थ्री ऑफ देम आर करेक्ट। सेम थिंग गोज फॉर द ट्रांजिएंट स्टेट रेस्पॉन्स। सिंस स्टेडी स्टेट में आई, पीआई और पीआईडी था, ट्रांजिएंट में क्या होगा? डी, पीडी एंड पीआईडी, डी, पीडी एंड पीआईडी, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। इफ एरर सिग्नल इज अ स्टेप सिग्नल देन एट आई कंट्रोलर्स आउटपुट वी विल गेट। स्टेप सिग्नल को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? एक रैंप सिग्नल, राइट।
इफ़ द एरर सिग्नल इज अ स्टेप सिग्नल एट डी कंट्रोलर्स आउटपुट, हमको क्या मिलेगा? स्टेप का, अगर स्टेप मतलब क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड। तो हम कांस्टेंट को अगर डेरिवेटिव करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? जीरो, सो नो सिग्नल। If an error signal is ramp signal, that at D controller's output we will get what? We will get a step signal because ramp signal का derivative होता है step. Which one of them responds to future errors? Future errors को respond करता है D controller. So D controller is the right answer. Which one of them exhibits band reject filter characteristics? मैंने आप लोगों को लेक्चर में भी बताया था कि PID controller is the one which exhibits band reject filter characteristics. So guys, जो 20 MCQs थे वो सब मैंने डिस्कस कर दिया है। आप, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट, कोई भी क्लैरिफिकेशन आप चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बिलो एंड लेट मी नो, आई विल सॉर्ट दैट आउट। ओके, सो या दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडे, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। मिलते हैं अगले लेक्चर पे, बाय।